Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS, and this is my AC class. In this session, I am going to discuss one topic, abstract topic of AC that has been asked in UPSC examination. The purpose is to help you understand that with limited knowledge but proper skill set that you have, you can write a very balanced essay, very scoring essay, and you can touch all the aspect that is required. So if you have some skills in essay, you know this thing, that whenever you have options to select your topic properly, how to select the topic, that is a separate skill that I have discussed in the previous video that you can should watch, because that will take time if I start discussing that thing. But here directly I have taken this topic, truth knows no color. This is the topic, and ask UPSC aspirants, most of them will say very abstract. So what do you think, that only those who have knowledge of philosophy, knowledge of deep philosophy will be able to answer this question, write essay on this topic? I don't think so. Even now, people with average knowledge but good logical understanding can answer this question. But of course, knowledge is raw material. If you do not know anything, how can you write? This applies to all sort of knowledge, all sort of essays. So first of all, you should be able to do rough work, means planning and then execution. So first phase is planning phase. Here I am telling rough work. What is that? First you will be able to delineate the meaning of truth. Getting what is truth and all, and then we will see that what do you mean by truth. So truth will have one aspect, objective aspect, subjective, that we will discuss first part. And second thing is that what do you mean by no color. So we will discuss about what is meant by no color, means color, what is that here, meaning that what is the meaning of this color. And then we will see that how this truth and color kind of things are related, what is the meaning of that. So first we will elaborate this thing, the truth. What things comes in your mind when we talk about truth? Means in simple term, in Hindi we will say सच्चाई क्या है, what do you mean by. So I am not talking about the, in technical term it is called valid things. What is valid? Okay. So some truths are very naked, very clear, very concrete. So you can say naked, clear, concrete. This is called objective truth. Objective truth. We will elaborate that one. And then another aspect of truth is that subjective, that abstract, interpretive and fluid, perceptual, perception based. This is called subjective. If we analyze the truth itself is a vague thing. So if we can say that there is a continuum from objective truth and this side is subjective truth, a gradient. As we move further, this side will be more concrete, more clear, and this side will gradually build things. For example,
social reality. Social reality is not totally visible. Many of the things are slightly invisible, latent. So it is not at this end here. You are getting my point. It will be somewhere this side. On subjective things, what is the meaning of life? Suppose it is meaning in life. See, different people will see the meaning different way. So it's highly subjective, highly individualistic. So when we talk about the truth knows no color, now elaborate the things. When we say truth knows no color, it means, are we talking about this one or this one or both? Question is this one or both? Very clear. See this thing. When we talk about truth knows no color, means there are truth that are concrete. I have already said this thing, that but there will be some truth where people will vary. Now you have analyzed all these things. Now how will you introduce this topic? This was the rough work, and now we are moving towards this one, the introduction. This thing, introduction can be written in the there are many skills to introduce some topic. You can start with some quote, you can start with some data, I am just giving you here. So I have made a separate video on that one, that what are the introduction skills. So if you want to make a big impact, then prefer to tell in such cases some anecdote, short story, see. Now take example of this. Now I have mentioned about the skill. This is a skill, and now how I will use this. When we talk about a state Bihar and its poverty, Niti Aayog has given the multidimensional poverty index. On that multidimensional poverty, Bihar is at the bottom. Listen carefully. So this you can say that what poverty reflects from the data. आंकड़ों में जो गरीबी दिखती है वो आपको यहाँ दिखेगी. What one leader was reporting while he was going in the field, जो ground में वो move कर रहे थे, then he came across many children. They were not having slipper in their feet. पैरों में चप्पल नहीं था, उसी तरीके से कपड़े नहीं थे. तो बिहार के ही एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, आपको याद होगा महात्मा गांधी जब ही रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, देन फर्स्ट जो उनका मूवमेंट है वहीं से स्टार्ट हुआ था. तो एक बार उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत गंदगी में रहते हैं, बहुत ही महिलाएं एकदम गंदे धोती यानी साड़ी पहन के रखी. तो उन्होंने महिला से पूछा कि दैट व्हाई डोंट यू कीप योर क्लॉथ्स क्लीन, आप लोग इतने गंदे क्यों रहते हो, पानी भी है, सब कुछ है, नहा लिया करो बच्चे से. देन अ लेडी रिप्लाइड, सर हम लोग नहाते तो है ही है, लेकिन कपड़े वही पहनना होता है, क्योंकि धोती तो सिर्फ एक ही है, मेरे पास जो साड़ी है वो सिर्फ एक ही है. पब्लिक में नहाना होता है, कोई तो अपनी इज्जत बचा के उसी से कई महिलाएं घेर के नहाती हैं, फिर जल्दी से उसी को पहन लेती थी. आज़ादी जब नहीं मिली थी उस दौर की बात कर रहा हूँ. इस बात से जो
गांधी जी ने कहा था कि जो डेटा की जो गरीबी है, आंकड़ों की जो गरीबी है, और जो एक्चुअल में ग्राउंड पे गरीबी होती है, बहुत ही अलग है, बहुत भयावह है। आज कई ऐसे स्टूडेंट जो है दूसरे प्रदेशों में वहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप लोग रिजर्वेशन क्यों नहीं करा के जा रहे हो, ऐसे ही जनरल में जा रहे हो, केरला तक जाओगे, मुंबई तक जाओगे। बोले उतने पैसे नहीं है ना। एक बच्चा धीरे से जवाब दिया कि पैसे भी नहीं है, कुछ देर तो दूर तो मतलब जब हम खाने के लिए पैसे रखें या टिकट के और कहेंगे तो गार्जियन तो देगा ही नहीं। या तो मैं एग्ज़ाम दे लूँ या तो कुछ खाना खा लूँ, टिकट कटा लूँ। आप समझ सकते हैं। तो ये जो ट्रुथ है, आप समझ रहे हैं, इसको आप चाहे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, राइट पर्सपेक्टिव से देखें, लेफ्ट पर्सपेक्टिव से देखें, आपको एक बात समझ में आएगा। ये जो पॉवर्टी है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड की पॉवर्टी है, वो ज़्यादा भयावह है। और इसमें हम इस जो जो डिफरेंसेस होते हैं ना, कि नहीं गवर्नमेंट, जैसे आप जो द पार्टी दैट इज़ इन गवर्नमेंट, तो वो कहेगी कि नहीं गरीबी कम है, अपोजिशन कह रहा गरीबी ज़्यादा है। आंकड़ों का खेल होता है, सब डेटा खेल लेते हैं। इस बात से कौन डिनाई करेगा, जो मैंने एग्जांपल दिया। तो कुछ जो ऐसी चीज़ें होती है जो इतना नेकेड होता है, इतना क्लियर होता है कि उसको कलर नहीं होता उसमें कुछ। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन ये दिखा रहा है, जो मैंने एक ग्राउंड का रिपोर्ट बताया, कि ट्रूथ नोज नो कलर्स। यहाँ पे कलर का मतलब हमने बताया कि वेदर यू आर इन गवर्नमेंट और इन अपोजिशन, वेदर यू आर फ्रॉम ए पर्टिकुलर पार्टी, जो जैसे लेफ्ट को कहते हैं ना कि प्रो पुअर थे, और राइटिस्ट के बारे में, या और भी कि बिजनेसमैन को सपोर्ट करते, फिर भी इनमें कंसेंसस होगा एक, सभी लोग यूनानिमसली कहेंगे कि हाँ ये बेहद गरीबी है, कोई शक नहीं। तो आपने देखा कि हमने इंट्रोड्यूस किया इसको कि कुछ मैंने ट्रूथ जो होता है उसमें कोई कलर नहीं होता। आप कलर आंखों में हो सकता है, कलर ट्रूथ में नहीं होता। अब हम चलते हैं इधर कि ये जो पर्सपेक्ट हमने अभी बताया आपको, कि जहाँ पे ट्रूथ जो है वो सब्जेक्टिव है, वहाँ पे रोल है पर्सपेक्टिव का। अब जैसे कलर किस चीज़ से तैयार होगा, तो एक पर्सपेक्टिव से। आपका अनुभव ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, मैच्योरिटी के कारण आप अच्छा देख पा रहे हैं। आपका नॉलेज ज़्यादा है, तो हो सकता है आप देख पा रहे हैं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक्सपर्टाइज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, एज का है, नॉलेज का है, आपने मैंने जो इतनी चीज़ें दिखाना शुरू किया, ये कलर क्रिएट करता है। किस चीज़ का? देखने का नज़रिया होता है, वो आप अपने नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे ट्रूथ होते हैं ना, कि जैसे आज आप कहोगे कि गवर्नमेंट ने अभी हमारा जो डेवलपमेंट है वो दुनिया के और लोगों के कंट्री के डेवलपमेंट से कम है, ज़्यादा है, ऐसे आप बोलना शुरू करोगे, तो कोई ऐसा तर्क कर दे देगा कि पहले वाले पार्टी ने या उसके गवर्नमेंट ने कौन सा बड़ा डेवलपमेंट किया था। देखो, यानी कि आप आज के समय के जो चीज़ें हैं उसको इस नज़रिए से कंपैरिजन करके दिखाना चाह रहे हो, है ना। जैसे अभी कहते बीजेपी का है, तो बीजेपी को क्रिटिसाइज करें तो वो कांग्रेस को कह दे, और कांग्रेस के राज्य में जो कुछ हो रहा है तो कहते बीजेपी में भी तो ऐसा होता है। सो हाउ दे आर क्रिएटिंग, यू नो, कलर ऑन द ट्रूथ।
सच्चाई आंकड़ों में दे रहे हैं आप, लेकिन फिर भी उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अपने तरीके से कर देते हैं। देखिए पर्सपेक्टिव सा आइडियोलॉजी है, ये सब क्लियर कलर क्रिएट करता है। अब हमारा टॉपिक जो है वो कहता है ट्रूथ नोज नो कलर, इसमें कोई कलर नहीं होता। अब देखें इस पे कि बात जब कोई भी पर्सपेक्टिव का जानते हैं तो पर्सपेक्टिव से एक अप्रोच देखेंगे, है ना। जब हम उसी चीज़ पे मल्टी पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, आज जिसको हम एक्लेक्टिक पर्सपेक्टिव कहते हैं, एक्लेक्टिक, है ना, मतलब सारे पर्सपेक्टिव को मिलाकर जब देखते हैं तो नलीफाई होती है चीज़ें। जो आप एक साइड से स्क्यूड था ना, आप जो देख रहे थे वो बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस हो जाता है। तो आप इस पर्सपेक्टिव में जो कमियां हैं हो सकता है इधर इस पर्सपेक्टिव में नहीं हो, और ये इस तरह से सारी चीज़ें हो जाती। तो आज पर्सपेक्टिव में भी लोग को कहा जाता है कि आप मल्टी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। वापस आते हैं टॉपिक पे, ट्रूथ नोज नो कलर, कलर की बात है ही नहीं। आप जैसे कोई भी सच्चाई है तो वो आप उसको अलग अलग आवरण दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं, है ना, अब क्योंकि वो एकदम ऑब्जेक्टिव नहीं है तो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो चीज़ें जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो कहा जाता है कि मेथड जो रखिए ना आप, वो साइंटिफिक रखिए। साइंटिफिक क्यों? इस साइंटिफिक जैसे कि आपने जो चीज़ को के बारे में क्लेम किया है, तो एक्सपेरिमेंट कोई और करेगा, एक्सपेरिमेंटर कोई और होगा और सब्जेक्ट कोई और होगा। ये ध्यान रखिए, आप खुद ही सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटर खुद ही सब्जेक्ट नहीं हो सकती, बायस है, साइंस का रिक्वायरमेंट है ये, क्योंकि साइंस इज़ नेकेड। मैंने कहा, ये कहा जाता है कि साइंस नेकेड है, साइंस इम्पर्सनल है, इसका कोई नो कलर, कलरलेस है ये। तो इसमें जो है आप दिखाएंगे कि इसमें कलर नहीं होता ही, तो साइंटिफिक मेथड है। एक कार्ल पोपर नाम का था इस फिलोसफर, उसने साइंस ऑफ मेथड निकाला, जिसको कहते हैं मेथडोलॉजी। जैसे होता है ना साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो लॉजी मतलब विज्ञान उसका। तो कार्ल पोपर said that there is a science of method, methodology. So under methodology he said that you should follow the scientific method in such a way that it remains naked, ओपिनियन नहीं होना चाहिए इसमें, फैक्ट ड्रिवेन होना चाहिए। तो उसने कहा दो चीज़ें आप इसमें रखेंगे, एम्पिरिसिज्म, एक फिलॉसफी है जिसको कहते हैं कि फैक्ट से चलेंगे हम, है ना, और दूसरा जो है रैशनलिज्म, जो कहा कि हम लॉजिक से चलेंगे। जब आप फैक्ट्स और लॉजिक से लाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि चीज़ें, थिंग्स विल बी, जो आपने उस पर कलर बनाया है किसी चीज़ों के लिए, वो हट जाएगा। जैसे शुरुआत में यूनिवर्स के बारे में क्या था, हमारे गैलेक्सी के बारे में, कि अर्थ इज़ द सेंटर एंड ऑल अदर थिंग्स इंक्लूडिंग सन ऑर्बिट्स अराउंड इट, रिवॉल्व अराउंड इट, है ना। देन केम कॉपरनिकस। सो कॉपरनिकस, on the basis of the scientific method, came up with the idea that no, sun is the center and earth orbits around this thing and other planets. So the what was the reactions? Reaction was of church का रिएक्शन क्या था, he has gone on insane, उसको क्या किया, उसने सजा देना शुरू किया। So this was the religious color, the things was under religious color, getting कि चीज़ें नहीं, तुम ये भगवान की बनाई हुई चीज़ें, हमारे जो गॉस्पेल में चीज़ें हैं, हमारे धार्मिक लिटरेचर, उसको झूठ साबित कर रहे हो। तो ये जो चर्च जो था, अभी तो आपको आसान लगता है, उस समय चर्च के खिलाफ जाना, अभी कोई जैसे कह दे कि भगवान नहीं है
या राम मंदिर जो बना है वहाँ कोई कुछ नहीं, पत्थर है केवल। तो जो हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, they will feel offended. Why offended? Because that is the faith, and that does no fact, no logic. Faith is blind. कहते थे ना, कार्ल मार्क्स कहता था that धर्म यानी रिलीजन इज ओपियम, धर्म अफीम है, नशा क्रिएट करता, उस पर एक अलग ही कलर होता है। बट साइंस, कार्ल पोपर की फिलॉसफी क्या करे, दैट इट शुड बी गाइडेड बाय थिंग्स लाइक एम्पिरिकल फैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ट्रूथ जो निकल के आएगा वो साइंटिफिक ट्रूथ होगा, गेटिंग, साइंटिफिक ट्रूथ होगा, एंड दैट विल बी इम्पर्सनल, दैट विल बी नेकेड, मतलब उसमें कुछ आवरण नहीं होगा, एंड देन दैट विल बी testable, you can check that thing. So it is colorless. Here colorless means will be free from opinion. Getting? You will elaborate all these points, करते जाओगे आप, and then you will come to the point that can all types of truth be colorless? जितने भी दुनिया में ट्रूथ है वो कलरलेस हो सकता है। देखो, ट्रूथ वर्ड का ही मतलब होता है कि सच्चाई, लेकिन कुछ ऐसे सच्चाई होते हैं ना जो इंडिविजुअलिस्टिक होता है। आपसे मैं पूछूं that which color is the best color, see this thing, this is really person centric, person centric आंसर होगा इसका। what does it mean? that it depends, suppose you like red, you will say red, and I like green, I will say green, and both answers are correct, both answers are correct, because it is not about objective truth, it is about the individualistic truth, means what is related inside the person, okay, inside the person. So बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे कलर दिख सकता है, जैसे कि आप रिलीजन का एग्जांपल दिया, बहुत सारे है ना, हमारे कल्ट हैं, पंथ हैं, सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने कलर से देखते हैं, सब सही है। तो यहाँ पे कहना कि कलरलेस है नहीं है, कि तो क्या धर्म सही है गलत है, तो इसको साइंस से टेस्ट ही नहीं कर सकते ना, श्रद्धा की बात है। जहाँ साइंस खत्म हो रहा है, आइंस्टाइन कहते हैं, वहाँ से धर्म शुरू हो रहा है, यानी उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास रहता क्या है। अभी इसरो के ही शायद प्रोजेक्ट में जो मंगलयान वाला एक प्रोजेक्ट फेल हुआ था, उसके बाद जो आए थे उसके डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि आप जो है साइंटिफिक पर्सन भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो कैसे? पहले एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, बाहरी दुनिया है, उसके लिए तो साइंस है मेरे लिए, जो मेरा इंडिविजुअल पर्सनल है, इंटरनल है, उसके लिए मेरा रिलीजन है। देखिए, सही है, इतने बड़े साइंटिफिक पर्सन जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, गलत क्या उनका अप्रोच है, फिलॉसफी। तो इस पोर्शन एक्सटर्नल रियलिटी वाले में आप कह सकते हैं कि ट्रूथ नोज नो कलर, लेकिन इंटरनल वाले में ट्रूथ में कलर हो सकता है। आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, और ऐसा करना चाहिए, व्हेनेवर यू राइट ऐसे आपको एग्जांपल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। एक झारखंड में एक जगह है देवघर, वहाँ पे लोग कांवर लेकर जाते हैं। तो मैं एक इंसान से मिला
तो वो लगातार उन्होंने बताया कि मैं 12 साल से जाता था कांवर लेकर, लेकिन अब मैंने कहा अब क्या हुआ, और बहुत तारीफ़ करते थे कि एक तरह से सर्विसिंग हो जाती है पूरी बॉडी की और उत्साह उमंग होता है। तो फिर मैं कई साल बाद मैं उससे पूछा तो उन्होंने बताया अब मैं नहीं जाता हूँ, कारण बोला मैंने सोच मांगा था उनसे, भगवान से, कि हमारे बेटे का एडमिशन अगर आईआईटी में हो जाए भगवान तो बहुत अच्छा हो और हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भगवान ने मेरा सुना नहीं और मेरा दिल छोटा हो गया और मैंने छोड़ दिया। अब आप इस धर्म में ही देखिए, आप कहेंगे कि क्या ट्रूथ है। कई लोग कहेंगे कि भगवान से मांगने के लिए सब जा रहा है, सबकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी, कई लोग कहें जरूर पूर्ति होगी। अब ये इंटरप्रेटिव रियलिटी है, फिलोसफिकल रियलिटी है, इसमें आप जितने ओपिनियन है सब में कलर है ना। आप एकेडमिक डिस्कशन में जाना चाहते हो तो भाई बुद्धिज़्म को ले लो, है ना, जैनिज़्म को ले लो, दिगंबर श्वेतांबर कपड़े पहनना सही है कि नहीं। जैन मैंने कहा भाई कि कपड़े पहनना सही, जूते नहीं पहनना चाहिए। और जूते इसलिए कहा नहीं पहनना चाहिए कि उस दौर में कंक्रीट की थोड़ी होती थी सड़कें वगैरह, और जानवरों को मार कर बनाया जाता था, ऐसा थोड़ी था प्लास्टिक के भी जूते होते। तो उस कंटेक्स्ट में उस कलर से अगर देखें तो सही था, और आज के कंटेक्स्ट में देखें कलर से देखें तो अपनी जगह सही है। तो जितने भी पंथ हैं, जितने भी कल्ट हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उनका अपना देखने का सब्जेक्टिव ट्रूथ का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, एंड यू मे से दैट मे बी वैलिड फॉर देयर फॉलोअर्स, है ना, उस पर क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, जब हम अभी बात करी है हम लोगों ने कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसमें इट नोज नो कलर, लेकिन जो सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअलिस्टिक है, जो इंटरप्रेटिव है, जो फिलोसफिकल, देखो एक फिजिकल रियलिटी होती है, एक फिलोसफिकल रियलिटी भी होती है। तो इंटरनल जो है उसमें कलर हो सकता है ना। तो ये जो आप देखिए दोनों पक्ष आपने डिस्कस कर लिया है। अब जाकर आपको डिस्कस करना है क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में तो यही लिखेंगे ना कि कुछ ट्रूथ हैं जिसको कलर नहीं होता, जैसे अभी नहीं बोला ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल ट्रूथ, जो ट्रूथ ऐसे भी ट्रूथ हैं जिनके कलर हैं, जिन पे पर्सपेक्टिव का के आधार पर हम देखते हैं, एज के आधार पर प्यार जरूरी है। एक ही उम्र के वाले पूछो तो प्यार कहेगा प्यार के बिना ज़िंदगी क्या है, 16 साल वाले के साथ। 25 साल में बोलो तो बोलो प्यार भी ज़रूरी है, 30-35 साल में बोलो प्यार के साथ पैसा भी ज़रूरी है। परसेप्शन बदलता रहता है। देखो कलर, उम्र का कलर हो रहा है, एज का, मैच्योरिटी का। एक फिर किसी ने कहा, बड़े अच्छे किसी कोर्ट में ही था कि 30 से पहले लोग सुंदर और कुरूप देखते होंगे, 30 के बाद तो लोग दो ही तरह से देखते हैं कि अमीर है या गरीब है। तो देखिए कैसे बदल रही है चीज़ें देखने का, आकलन करने का, उसी इंसान का ट्रूथ के बारे में कि कैसे डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है मैरिज पे। तो अगर 20 साल की उम्र वाला देख रहा है तो दूसरे नज़रिए से देख रहा है, और 30 साल वाला देख रहा है तो दूसरे नज़रिए से देख रहा है, बताइए, है ना। इस तरीके से आपको ये कंक्लूड कर सकते हैं आप। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कम नॉलेज है और बेसिक नॉलेज है, मतलब कम का क्या बोलें, एंड देन दे वांट टू राइट द एसे। सो बाई यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको समझ के और फिर उसका एसे लिख सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें हमने कुछ वैसा नहीं बताया कि अब जैसे हम स्किलिंग तो मैंने अलग बता दिया कि जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे किया जाता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है, वो स्किल मेरे पास है इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। लेकिन मेन बॉडी है, ब्रेन बॉडी में जो उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हर एक एसी का एक लॉजिकल डिज़ाइन होगा, वो आपने समझ लिया होगा कि ट्रूथ क्या है, फिर कलर क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या हर तरह के ट्रूथ कलरलेस होते हैं,
या कुछ ट्रूथ में कलर भी होता है, एग्जाम्पल्स वगैरह देकर फिर फाइनली कंक्लूड करना है, यही तो करना था, हमने कर दिया। देखिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, देखिए कैसे, केवल आपको एक बेसिक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझाया कि इफ़ यू अप्रोच दिस इन दिस वे यू विल बी एबल टू राइट दिस। अब आपके पास वर्बल स्किल कितना है? सपोज आई वांट टू से दैट poverty uh, is not a black and white concept। ठीक है, अब ये तो मुझे लिखना आ रहा है ना, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ों को आप फ्रेज कर देंगे, रिफ्रेज कर देंगे, वर्बलाइज कर देंगे, आर्टिकुलेट कर देंगे। अगर आपको आइडिया को शब्द में नहीं लिखना आता तब तो आपका अलग प्रॉब्लम है, बट जब आप सबके पास वर्बल स्किल है आपके पास, उनके लिए मैं बता रहा हूँ किस तरह से। यूपीएससी का ऐसे की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप अगर आप एकदम सीखना चाह रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो चाहिए ही ना, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। अगर आपको कुछ डाउट हो ना तो आप हमसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, ये मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये ओपन वीडियो है, मैं टैब पे ही बना के दिखा रहा हूँ। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और ऐसे पे। और ऐसे तो यूजुअली मैं बोर्ड पर बनाता हूँ, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से बनाया है। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच। आप अपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना आपको कैसा लगा।